nationalism in Europe. Nationalism is a concept which means having similar interest, common shared history, common language, which consolidates people into one group in and around a predefined area or a boundary that can be termed as a nation, and the feeling to arise those commonness is termed as nationalism. So the rise of nationalism in Europe in world history. During 19th century, there were many changes that were taking place. One such change was in 1848 when Frederick Soru, a French artist, prepared series of 4 prints which visualized his dreams of a world which is made up of democratic and social republics. So the idea of democratic and social republics came after this painting, where you can see the Statue of Liberty. In one hand she is holding the fire, and on the other concept of nationalism was in the pipeline. These two countries have already attained nation state, and just these countries which you can see here in front of the Statue of Liberty, these French followed by German, and so on, other European states which were not nation states by that time. So this figure shows that people of Europe and America, men and women of all age and social classes, marching in a long train offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Okay, so earlier French Revolution, the artists have personified female figures which bears torch of enlightenment, and on the one hand and on the other she bears charter of rights of man. And the image you can see the remains, the shattered remains of absolute form of government, which were like absolute institutions. So this Soros European vision, European means something which is not existing in its ideal form, it's imaginary, and it is the perfect society or perfect thing which exists, but it is not likely to actually exist. Okay, so Utopian is a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to exist. मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा ideal, हर चीज़ में वो perfect, ऐसा एक vision जो हकीकत में नहीं हो सकता. Absolute means a government that rules and has no restraint on the power exercise. तो मतलब वो अपनी पावर को कोई कंट्रोल नहीं करता, और हिस्ट्री में उसको टर्म दिया गया है मोनार्कियल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रलाइज्ड है और मिलिटराइज्ड है और रिप्रेसिव है. कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले तो वो उसको सबड्यू कर सकती है, या वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को बंद कर सकती है, जो कि हमने आगे जो रिवॉल्यूशन है उसमें देखा है. ठीक है, तो सोरू का जो विजन था वो था कि जो लोग हैं वो ग्रुप हो गए हैं डिस्टिंक्ट नेशन में, वो अपने फ्लैग के द्वारा आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम के द्वारा. अब वो जो प्रोसेशन है वो चल रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को. स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने और स्विट्जरलैंड ने, क्योंकि उस टाइम तक वो ऑलरेडी नेशन स्टेट थे. फ्रांस जो है आइडेंटिफाई कर रहा है अपना रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर से. ठीक है, वो जस्ट रीच किया गया है स्टैचू पे, तो आप जैसे इसको देख सकते हो, तो फ्रांस हैज जस्ट रीच दी स्टैचू. ठीक है, सो फ्रांस हैज जस्ट रीच दी स्टैचू. तो ये जो है ये फ्रांस है. ठीक है, फ्रांस के बाद ये जर्मनी. ठीक है, जर्मनी का ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग है. ठीक है, जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग. ठीक है, सो इंटरेस्टिंगली जब सोरू ने ये आइडिया क्रिएट किया था, जर्मन जो लोग थे वो एग्जिस्ट नहीं करते एक नेशन में. And the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into nation-state under a democratic constitution. ठीक है, जर्मन पीपल के बाद ऑस्ट्रिया के पीपल थे, फिर किंगडम ऑफ टू सिलिसीज थे. ठीक है, जो अब जाके इटली में हो गया लॉम्बार्डी,
पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। तो इन सबके जो लोग थे दे वर फॉलोइंग द प्रोसेशन इन दिस प्रिंट। और क्राइस्ट, सेंट, एंजल्स वो क्या कर रहे थे, वो इन सब चीजों को देख रहे थे, ठीक है। दे वर शावरिंग देयर ब्लेसिंग्स एंड दे वर फीलिंग हैप्पी एंड देयर इज अ मैसेज रिटन ऑफ फ्रेटर्निटी, मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। तो वो ये सब देख रहे थे, दे वर गिविंग देयर ब्लेसिंग्स and were gazing upon the scene, and it was used to symbolize the fraternity among the nation of the world. So in this chapter we'll deal and understand the concepts which are visualized by this Soru. So हुआ क्या था कि 19th century में जो nationalism है, it has emerged a force that brought some drastic changes in the political and mental world of Europe. और उसका जो end result था वो क्या था, emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. और जो कंसेप्ट था, प्रैक्टिस था मॉडर्न स्टेट का, that is having a centralized power which was exercised over a sovereign control over a clearly defined territory and कंसेप्ट है जिसमें क्या है, he was a French philosopher, ठीक है। और he delivered a lecture in the University of Sorbonne in 1882 where Ernest Renan outlined his understanding of what makes a nation. So according to him, what nation is, and the lecture was subsequently published as a famous essay titled Quest Sequin Nation, which means what is a nation. So in this essay, Renan criticized this the notion suggested by others. जो भी लोग वो सजेस्ट क्या करते थे कि नेशन जो है वो फॉर्म हुआ है कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन से। तो रेनन ने इसको क्रिटिसाइज किया कि रेनन ने इसको बोला कि भाई नेशन जो है वो फॉर्म्ड ना सिर्फ कॉमन लैंग्वेज, रेस और रिलीजन से या टेरिटरी से हुआ है, कि जो भी काम किया है पुराने हिस्ट्री में, जो भी सेक्रीफाइस हुआ है और जो भी डिवोशन है, ठीक है, अ हेरोइक पास्ट ग्लोरी दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। तो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी काम किया है जिससे एक ग्लोरी आपस में बता सकें, कोई भी एक हेरोइक मूवमेंट जो हुआ है, ठीक है, और जो सेक्रीफाइस किया है लोगों ने अपने देश के लिए या अपने एरिया के लिए, जहां पे एक कॉमन गोल मैट हो सके, दैट इज अ बेसिक आइडिया विच नेशन स्टेट्स रेस्ट अपॉन। बिल है essential conditions of people of being a people. Therefore, a nation is therefore a large scale solidarity. Its existence is daily plebiscite. तो उसकी existence क्या daily plebiscite है, ठीक है। A province is its inhabitants. तो जो एक प्रोविंस है वहां पे जो उसके लोग हैं वो उसके inhabitants हैं,
ठीक है, तो जिसको भी राइट है, तो जहां वो जो लोग रह रहे हैं तो इनसे कंसल्ट करें, ठीक है। अगर मान लो कोई भी चेंज करना है इस नेशन के में, या कोई भी एक डेवलपमेंट लेना है, तो वो इन लोगों से कंसल्ट करें और डेली उनसे प्लेबिसाइट, मतलब प्लेबिसाइट यानी कि उनसे राय मांगे, उनसे पूछें, ठीक है। सो दिस वाज द होल आइडिया ऑफ Ernest Renan. So a nation has never has any real interest in annexing or holding to a country against it. अब ये एक जैसे ये नेशन है, तो ये नेशन है, तो ये इन दोनों का ये नहीं होगा कि भाई ये इसकी टेरिटरी इसमें ले ले और ये इसकी टेरिटरी इसमें ले ले, अगेंस्ट देयर विल। तो ना इसकी रजामंदी से होगा अगर होगा, और नहीं हुआ अगर इसकी विल नहीं है, तो दे विल नॉट annex or hold. So the existence of nation is a good thing, a necessity even. Their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only one law and one master. तो अगर एक law है, एक master है, तो ये जो identity है, that will be lost. So how the idea of French Revolution and idea of nation came into? So जो पहला जो nationalism का clear expression था, वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया 1789 में। फ्रेंच जो था फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट था, ठीक है, 1789 में, और इसको जो रूल करते थे वो करते थे एब्सोल्यूट मोनार्क। फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आने लगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने सोवरेनिटी है मोनार्की से उन्होंने दी बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन को। फिर जो रिवॉल्यूशन है इसको प्रोक्लेम किया गया दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया ऑफ नेशन आया। सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि शुरुआत से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस किए थे ताकि जो एक कॉमन सेंस है कलेक्टिव आइडेंटिटी का लोगों में वो आए। जो आइडिया है ला पैट्रियट का, जिसका मतलब है फादरलैंड, ले सिटियन का, जिसका मतलब है द सिटीजन, इसको एम्फेसाइज किया गया ताकि जो नोशन है यूनाइटेड कम्युनिटी का, जो इक्वल राइट्स एंजॉय कर सके एक कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आए। एक नया फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर चूज किया गया जो रिप्लेस कर देगा फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को। द ईस्ट जनरल उसको इलेक्ट किया गया बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन से, और उसको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली से। मतलब जो भी लोग थे उनको इलेक्ट किया गया, और द स्टेट जनरल को किसने किया, एक्टिव सिटीजन ने, और उसको रीनेम कर दिया नेशनल असेंबली में, ठीक है। नए हिम्स कंपोज हुए, ओथ्स ली गई, ठीक है। जो भी मैरिट्रेट्स थे उनको कमेमोरेट किया गया, जो भी मतलब उन्होंने बलिदान दिया इसके लिए, या जो भी फ्रेंच में एक लाइफ दी, अपनी जान दी ताकि आज जो नेशन है वो बन सके, उनको याद किया गया, ठीक है। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, सब कुछ नेशन के नेम में। सो अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज। तो उन्होंने यूनिफॉर्म लॉज बनाए सारे सिटीजन के लिए जो भी उस टेरिटरी में थे, ठीक है। सो यूनिफॉर्म लॉज हुए, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। तो जो भी इसमें इंटरनल अलग अलग, जैसे एक देश है उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, यहाँ पे ड्यूटीज अलग है, यहाँ पे, तो इन सबको अबॉलिश कर दिया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया ताकि इससे क्या है कि मूवमेंट जो है गुड्स का और प्रोडक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो ज्यादा हो, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स को क्या किया गया, डिस्करेज किया गया, और फ्रेंच को, क्योंकि वहां फ्रेंच स्पोकन थी, फ्रेंच को बोला जाता था, तो उसको, और रिटन इन पेरिस, फ्रेंच वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, तो इट बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। फिर रिवॉल्यूशनरी ने क्या किया कि भाई उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो मिशन है उसका फ्रेंच नेशन का, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, ठीक है। तो यूरोप को लिबरल करना था उन्हें डेस्पोटिज्म से। अब डेस्पोटिज्म क्या होता है कि एक चाह होती है लोगों की, कुछ लोगों की, जहां वो एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज करते हैं, मतलब द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर स्पेशली इन क्रूअल एंड ऑपरेसिव वे। तो उसको क्या करना था कि भाई लिबरेट करना था लोगों को डेस्पोटिज्म से। इन अदर वर्ड्स, हेल्प पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। तो इन शॉर्ट लोगों को नेशन में, यूरोप के लोगों को नेशन में बनाना था। अब ये जो न्यूज हैं, जो इवेंट्स है फ्रांस में, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में गई यूरोप की। यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब सेटअप करना चालू किया। उन्होंने एक्टिविटीज कैंपेन्स प्रिपेयर की ताकि जो फ्रेंच आर्मीज हैं वो दूसरी कंट्रीज में, दूसरे नेशंस में, दूसरे स्टेट्स में घुसे, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली 1790s। फिर क्या हुआ कि ये आउटब्रेक हुआ, रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुए, फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, आइडिया को नेशनलिज्म आइडिया को अब्रॉड में कैरी किया।
This cover you can see the cover of German Almanac designed by journalist Andrew. So
तो जो भी स्टेट वो लूज कर रहे थे वहाँ का ये